Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. Hope everybody is healthy and doing well in their studies. Okay, so today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, synthetic fibers and plastic. In this video we are going to talk about the synthetic fibers. In the previous classes you have learned about fibers, what fibers are, right? And there are two types of fiber. You already know about it, that natural fibers are there and synthetic fibers are there. Natural fibers are those fibers that are obtained from the plant and animals. जो plant और animals से हमें मिलते हैं fibers directly, उन्हें हम क्या कहते हैं, natural fibers. इसमें आपका example है silk, cotton. Okay, in the picture also you can see the silk. It has a shiny appearance, right? And cotton also you would have seen it has a subtle, not that much of shiny appearance like the silk, but it is a subtle cloth. Okay, then coming to the synthetic fiber. Synthetic fibers are those that are manufactured in the factory from chemical components. ये factories से बनते हैं आपके chemical से, ठीक है, केमिकल से बन रहे हैं. तो ये क्या है, हमने बनाए खुद से, मैन मेड हैं ये, ठीक है, इसलिए इन्हें सिंथेटिक कहा गया. बिकॉज ये नेचुरल चीज़ों से हमें नेचर से डायरेक्टली नहीं मिले हैं. ओके, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स. इन दिस एग्जाम्पल्स आर रेयॉन, नायलॉन एंड अदर्स यू आर गोइंग टू लर्न नाउ. So in this chapter we are going to only talk about synthetic fibers, because in the previous classes you have already gone through the natural fibers. So we will continue it. We will go through the types of the synthetic fiber now. So the first we should be knowing how the synthetic fibers are formed. What is the smallest unit of the synthetic fiber? As you know, like taking an example of our own body, हम अपनी खुद की बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी? हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है जिससे हम बने हैं पूरे मिल के, उस यूनिट से मिल कर हम बने हुए हैं पूरे बॉडी, राइट? सेल, राइट? तो सेल जो है हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है, जिससे छोटी छोटी यूनिट से वो सेल से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी बन गई है. Same as it is, synthetic fibers are also made from the smallest unit, that is called as monomer. Okay, mono means one. Okay, when these monomers join together they form polymer. ठीक है, पॉली का मतलब होता है दो से ज़्यादा. तो मोनोमर में एक या दो होंगे और पॉली में दो से ज़्यादा होंगे. अब क्या ज़्यादा होंगे? सो monomers are substances of hydrocarbon. Hydrocarbon means hydrogen and carbon. H denote to the hydrogen and C denote to carbon. Okay, so there are two carbons here, four hydrogen here. So the carbons are being counted. दो कार्बन की चेन है यहाँ पे. ओके, छोटी सी है, मतलब बहुत ही छोटा है, तो इसे मोनोमर कहेंगे. व्हेन दीज मोनोमर जॉइन टुगेदर, जब ये मोनोमर जॉइन हो जाते हैं एक साथ, तब ये क्या बनाते हैं? पॉलीमर. मतलब दो से ज़्यादा होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमर. ठीक है, समझ आ रही है बात? सो मोनोमर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स एंड आर सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, वी कैन से. ओके, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ देम इज मोनोमर. ओके, क्लियर? वेरी गुड. नाउ वी विल गो थ्रू द टाइप्स ऑफ द फाइबर्स. द फर्स्ट फाइबर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रेयॉन. दिस फाइबर लुक्स लाइक सिल्क. अभी हमने सिल्क की पिक्चर देखी थी, राइट? सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक सेम, दैट सेम शाइन इज देयर. सो इट इज़ अ फाइबर दैट लुक्स लाइक silk. Its appearance is like a silk. Okay, that's why it is called as artificial silk, that is chemically made. The silk that is chemically made, it looks same like silk. Okay, but there is one thing there, that this fiber is not totally, you can say it is not totally chemical or artificial. The first product or you can say the first substance from which we make this fiber is a natural thing. मतलब जिस चीज़ से हम इस फाइबर को बनाना स्टार्ट करते हैं वो नेचुरल चीज़ है. वो क्या है नेचुरल चीज़? सेलुलोज.
ओके, सेलुलोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स में सेलुलोज होता है। तो क्या करते हैं कि वुड पल्प, जो लकड़ी होती है, लकड़ी का पल्प निकालते हैं, पल्प हम हिंदी में कहते हैं गुद्दा, ठीक है, लकड़ी का पल्प निकाला, उसमें से निकला सेलुलोज। ओके, अब ये जो सेलुलोज है उसको क्या करेंगे, केमिकल में ट्रीटमेंट देंगे, केमिकली इसे ट्रीटमेंट देंगे और फिर हमको मिलेगा रेयॉन। तो इसका मतलब क्या है, रेयॉन टोटली नेचुरल नहीं है, ना ही वो टोटली केमिकल है। मतलब वो पहले हमें सब्सटेंस उसका कहाँ से मिला, नेचर से मिला, और फिर हमने उसे केमिकल से ट्रीट करवाया, तो वो एक क्या बन गया, आपका सिंथेटिक फाइबर बन गया। ओके, क्लियर अबाउट इट, वेरी गुड। नाउ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन आर, फर्स्ट थिंग यू हैव सीन इट ऑलरेडी दैट इट इज़ शाइनी, ठीक है, बहुत ही चमकीला हो, चमकता हुआ सा कपड़ा है, लस्ट्रस है, लस्ट्रस का मतलब भी क्या है, चमक। ओके, and one thing more that it is a good absorber of moisture, it absorb moisture। अगर आप इसे पहनेंगे तो पसीना आएगा तो पसीना ये सोख लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ओके, मतलब ये अच्छा है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे पसीने को अगर सोख रहा है तो इसका मतलब हमें हमारी बॉडी में इचिंग वगैरह या पसीना हमारी बॉडी में ही चिपका नहीं रहेगा। ओके, थर्ड थिंग इज़ इट इज़ कूल टू वेयर, मतलब आपको पहन के इसे ठंडा सा फील होगा, आपको बहुत गर्मी नहीं लगती इसको पहनने के बाद भी। ओके, नेक्स्ट थिंग, इट इज़ सॉफ्ट एंड शाइनी टू टच, सॉफ्ट है, ठीक है, और शाइनी है, मतलब सिल्की है, सॉरी शाइनी नहीं, सिल्की है, मतलब बहुत ही मुलायम फील होगा आपको इसे टच करके। ओके, बट वन थिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दिस इज़ दैट सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सिल्क जो एक्चुअल में नेचुरल सिल्क होता है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट दिस रेयॉन इज़ चीपर देन दैट, इससे सस्ता मिलता है, नेचुरल सिल्क से आर्टिफिशियल सिल्क जो हमारा है वो हमें सस्ता मिलता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छी बात है कि सिल्क की अपीयरेंस भी दे रहा है, सारे क्वालिटीज़ उसकी तरह हैं और सस्ते में मिल रहा है। ओके, and we can make other fibers also by mixing this rayon with wool, cotton and all, ठीक है। तो मतलब मिक्स्ड फाइबर्स तो आजकल मिलते ही हैं मार्केट में, दे मिक्स टू फाइबर्स टुगेदर टू कंबाइन देयर क्वालिटीज़, राइट, एक नया फाइबर बन जाता है। तो रेयॉन को भी आप वूल और कॉटन वगैरह के साथ मिक्स करके एक नया फाइबर बना सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट रेयॉन। नाउ द सेकेंड synthetic fiber is nylon. You would have heard about nylon very much. नायलॉन की रोप्स आती हैं, इन द पिक्चर यू कैन से रोप्स आर देयर, इसकी भी हल्का सा शाइनी टेक्सचर होता है। ओके, फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू इन द रेयॉन दैट इट इज़ नॉट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, इट इज़ नॉट फुल्ली सिंथेटिक, राइट। सो पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, नायलॉन, जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियली बना है, जबकि रेयॉन हमारा नेचुरली चीज़ से, हमने उसे आर्टिफिशियल केमिकल ट्रीटमेंट देने के बाद उसे हमने बोला कि हाँ वो सिंथेटिक फाइबर है, बट वो पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है, ठीक है। तो पहला सिंथेटिक फाइबर, पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर जो है वो कौन सा है, नायलॉन। ओके, इट ऑल्सो हैव अ शाइनी अपीयरेंस, यू कैन सी दीज रोप्स दैट दे आर शाइनी, ओके, एंड दे आर इलास्टिक, जैसे एक रबर होती है, मतलब उतना इलास्टिक नहीं है बट थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी होती है इसमें, और अगर आप इसे थोड़ा बहुत खींचें तभी भी अपनी स्ट्रेंथ लूज़ नहीं करेगा। मतलब आपने जैसे कि एक रबर को खींचा, ज़ोर से आपने उसको दोनों साइड से खींचा, तो वो अपनी शेप एकदम से छोड़ तो नहीं देता ना, कि मतलब आपने उसे खींच दिया तो वो उसी शेप में रह गया, नहीं, वापस आ जाता है अपनी जगह पे वापस, है ना। तो वैसे ही नायलॉन भी है, आपने थोड़ा बहुत उसे शेप खींचा तभी भी वो अपनी शेप लूज़ नहीं करेगा, अपनी स्ट्रेंथ लूज़ नहीं करता। ओके, इट इज़ वेरी लाइट वेट, बहुत ही हल्का होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है, बट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, तभी इससे रस्सियाँ वगैरह बनती हैं। ओके, एंड ड्यूरेबल, मतलब बड़ा आराम से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड इट इज़ ईजी टू वॉश, बहुत ही आराम से आप इसे धो सकते हैं, और ये बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बहुत ही, जब इसे आप पानी में डुबोएं या धो रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें पानी बहुत कम एब्जॉर्ब होगा, तो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब सूख भी जल्दी जाएगा, ठीक है। तो इट ड्राइज ईजिली ऑल्सो,
एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ रिंकल फ्री, रिंकल्स नहीं पड़ते। जैसे आपने अपने कपड़ों में देखा होगा, कॉटन क्लोथ्स वगैरह में आपने उसे धोया वगैरह तो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है, फिर प्रेस वगैरह करना पड़ता है आपको। बट नायलॉन में ये प्रॉब्लम नहीं होती, उस पर रिंकल्स नहीं पड़ते, ठीक है, तो आपको प्रेस वगैरह करने का झंझट नहीं होता है इनके साथ। एंड इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मॉथ। मॉथ क्या होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं जो कपड़े वगैरह को ख़राब करते हैं, ठीक है, बट नायलॉन में मॉथ अटैक नहीं करता बिकॉज इट इज़ केमिकली मेड, तो मॉथ इस पर अटैक नहीं करते हैं। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, यू वुड हैव सीन मदर वगैरह जो होते हैं वो जब गर्मियों के कपड़े या सर्दियों के कपड़े अंदर रखते हैं जिस टाइम पे सीज़न चेंज होता है, तो उसके साथ कुछ वाइट बॉल्स लगते हैं, नैप्थलीन बॉल्स, राइट। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि वो कीड़े वगैरह कपड़ों को ख़राब ना करते हैं, ठीक है, बट नायलॉन के साथ ये प्रॉब्लम है ही नहीं। नाउ द यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन्स आर यूज टू मेक ट्रैक सूट्स। आपने ट्रैक सूट्स देखे होंगे जो एथलीट्स वगैरह पहनते हैं, जॉगिंग वगैरह पे जाने के लिए आप ट्रैक सूट्स वगैरह पहनते हैं, आपके स्कूल के ट्रैक सूट्स होते हैं तो नायलॉन से बनते हैं। कुछ रेनकोट तो नायलॉन से बनते हैं। स्टॉकिंग्स वगैरह होती हैं जो सॉक्स वैसे जैसे होते हैं, वो भी आपके नायलॉन से बनते हैं। कर्टन्स, ठीक है, पर्दे, बेडशीट्स, ये सब भी नायलॉन से बनाई जाती हैं। कुछ फिशिंग नेट, इन द पिक्चर यू कैन सी फिशिंग नेट, जो मछली पकड़ने का जाल होता है वो भी आपका किससे बनता है, नायलॉन से। ओके, टूथब्रश जो है आपका क्या है, जो ये दिख रहा है आपको टूथब्रश की ब्रिसल जिससे आप ब्रश करते हैं, ये वाला पार्ट, दीज आर ऑल्सो मेड बाय द नायलॉन, ये भी नायलॉन से बनते हैं। अच्छा, एक आपका यहाँ पे पैराशूट छुप गया है डायग्राम इस पिक्चर के पीछे। पैराशूट आपने देख रखा होगा टीवी वगैरह में। सो दैट इज़ ऑल्सो मेड बाय नायलॉन बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट होता है, तो बहुत ईजी हो जाता है हवा में आपके लिए। ओके, टायर्स आर ऑल्सो मेड बाय द नायलॉन एंड रोप। अभी रोप तो मैंने आपको दिखाई दी थी। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ द नायलॉन। ओके, नेक्स्ट द थर्ड synthetic fiber is polyester. Okay, now what polyester is? Polyester is a long chain polymer of compound generally termed as esters. अभी हमने बात करी थी कि मोनोमर्स ज्वाइन करके आपके क्या बना लेते हैं, पॉलीमर्स। ओके, तो यहाँ पे एस्टर होते हैं मोनोमर्स, ये एस्टर है, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट देम इन 9th क्लास केमिस्ट्री। इनके बारे में आप केमिकली जो आपको ये दिख रहा होगा, ये अभी आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बस मैं आपको एक रिजेम्बलेंस के लिए दिखा रही हूँ। ये केमिस्ट्री में आप क्लास 9th में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ओके, सो यहाँ पे एस्टर, ये आपको सी दिखा रहा है, कार्बन है ये। आर जो होता है ये आपके एलीन्स वगैरह होते हैं। ओके, ओ क्या है, ऑक्सीजन, तो ये छोटे सा आपको दिखाई दे रहा है, ये एस्टर है। जब ये बहुत सारे एस्टर एक दूसरे से जुड़ गए, ये दिख रहे हैं आपको, 1 एस्टर, 2, 3 and 4, these are joined together, now they are called as polyester. ओके, तो ये पॉलीएस्टर बन गया, एक हमारा एक सिंथेटिक फाइबर बन गया। ओके, व्हाट आर द इट्स प्रॉपर्टीज़? इट इज़ रिंकल फ्री, बहुत अच्छी बात है, रिंकल फ्री है तो बार बार प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, ये भी पानी एब्जॉर्ब कम करता है, और ये अलग अलग कलर्स में से डाई किया जा सकता है, ठीक है। इसे आप कलर कर सकते हैं किसी भी जिसमें भी आपका मन चाहे वो आप कलर इसको दे सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट आर इट्स यूजेस, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो इट्स वन ऑफ इट्स टाइप इज़ PET। PET मीन्स पॉली इथाइलिन टेरापेथलेट, ठीक है, पॉली इथाइलिन टेरापेथलेट। ये क्या होता है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो कि जार्स, ठीक है, जार मतलब जैसे आपके जग्स वगैरह होते हैं या फिर आपका छोटे छोटे से आपके बॉटल जैसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके मदर दाल वगैरह मसाला वगैरह रखते हैं, जार्स होते हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये भी किससे बनते हैं, PET से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये जो है आपका बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसे पॉलिएस्टर को यूज़ किया जाता है, शर्ट्स बनाने के लिए, ड्रेसेस, साड़ीज़, बेडशीट्स, कारपेट्स, इन सब को बनाने के लिए पॉलिएस्टर वगैरह यूज़ किया जाता है। ओके,
एंड पॉलीएस्टर आर ऑल्सो मिक्सड विद अदर फाइबर्स। पॉलीएस्टर को आप दूसरे फाइबर्स के साथ मिक्स करके नए नए फाइबर्स बना सकते हैं। तो एक पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन एक एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर का। इसको आपने कॉटन के साथ मिक्स कर दिया तो टेरिकॉट बन गया। पॉलीएस्टर को आपने कॉटन के साथ मिक्स करा नॉर्मल तो पॉली कॉटन बन गया। ठीक है, टेरिलीन को आपने सिल्क के साथ मिक्स कर दिया तो टेरी सिल्क बन गया। और आपने टेरिलीन को वूल के साथ मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, टेरी वूल बन गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर आर बीन मेड बाय द पॉलीएस्टर। तो ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द लास्ट फाइबर, that is the acrylic or acrylan. Okay, two names are there. So this fibers have a property like wool. जो हमने घर में ऊन वगैरह देखते हैं, स्वेटर्स वगैरह जिसके हम पहनते हैं, तो एक सिंथेटिक वूल भी आता है जिसका नाम है एक्रेलिक। ओके, सो ये आपका वूल जैसे दिखता है, जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा, ये एक्रेलिक है। दिख बिल्कुल ऊन जैसा ही रहा है, वूल जैसा ही रहा है हमें। ओके, सो व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़? फर्स्ट थिंग, इट इज़ सॉफ्ट। जैसे वूल होती है वैसे सॉफ्ट है। इट इज़ लाइट वेट, ईजी टू वॉश, बड़े आराम से धुल जाता है। एंड इट ड्राइज क्विकली, मीन्स दैट इट डजेंट एब्जॉर्ब दैट मच ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता होगा, तभी जल्दी से सूख भी जाता है। एंड इट इज़ रिंकल फ्री, तो रिंकल्स नहीं पड़ते। ओके, एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड मॉथ। अगर आप केमिकल्स या मॉथ वगैरह है उससे ये ख़राब नहीं होते। रेजिस्टेंट होने का मतलब सहन कर लेते हैं उन्हें, उससे ये कपड़ा ख़राब नहीं होगा। ओके, एंड चीपर, वूल से सस्ता होता है ये। ओके, सो ये तो बहुत अच्छी बात है। देन मोर ड्यूरेबल देन वूल, जो वूल है ऊन से ज़्यादा ड्यूरेबल है, बड़े आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, few examples of acrylic is Orlon, Cashmelon, Acrylon. Okay, so these are the some examples of acrylic. Okay, now what are the uses of it? It is used to make socks, sweater, shawl, blanket, rugs. Rugs होते हैं आपके जैसे पैर पोंछने के लिए, आपने पायदान देखे होंगे। These are the rugs. Okay, तो ये सब क्या है आपके, ये जैसे आपकी वूल यूज़ होती है उसी की रिप्लेसमेंट है एक्रेलिक। सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट इट अपीयर्स लाइक व्हाट, वेरी गुड, इट अपीयर्स लाइक वूल। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर ओवर नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स से कैसे अच्छे हैं, क्या एडवांटेजेस है हमारे लिए? तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनमें, मतलब एकदम से ख़राब नहीं होते। खींचेंगे तो एक ऐसा नहीं होगा कि अपनी स्ट्रेंथ खो देंगे, टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है इनकी। रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अगर आप इसे खींचेंगे भी तो ये अपनी वापस से अपनी शेप में आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा खींच देंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप इसे स्ट्रेच करते हैं तो ये अपनी स्ट्रेंथ लूज़ नहीं करता है, जल्दी से अपनी शेप को ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। ओके, दूसरी चीज़ और हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि ये मॉथ, बैक्टीरियाज वगैरह से अटैक नहीं करते इसे। ओके, इसे अटैक नहीं करेंगे। ओके, एंड इट ड्राइज क्विकली, ये बड़ी जल्दी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ओके, देन इट इज़ चीप, सस्ते होते हैं ये। ओके, ईजी टू वॉश है और मेंटेन, आप आराम से इन्हें मेंटेन करके रख सकते हैं, बड़े आराम से धो सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, देन व्हाट आर द इट्स डिसएडवांटेज? इसकी एक डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ फाइबर्स जो हैं इनमें से सिंथेटिक फाइबर्स, नॉट ऑल बट कुछ जो है ये मॉइस्चर को रिपेल करते हैं, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते। मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करना या स्वेट एब्जॉर्ब, पसीना, स्वेट मतलब पसीना, तो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो हमारी, जैसे कि आप मान लो आप रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, नायलॉन का ट्रैक सूट पहन के आप जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो आपकी बॉडी जो आपने ट्रैक सूट पहना है वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा मॉइस्चर को। ओके, तो क्या होगा, आपको रैशेस हो सकते हैं क्योंकि पसीना अंदर अंदर आपकी बॉडी में ही चिपका हुआ है
और आपको क्या कर रहा है, आपको वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, क्योंकि स्वेट में वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, तो आपको इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत एक डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स का, सारे नहीं, बट कुछ सिंथेटिक फाइबर्स का ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जब है जैसे ये बहुत जल्दी जल जाता है। अब जलने का मतलब आप कहेंगे कॉटन भी तो जल जाता है, सिल्क भी जल जाएगा वो तो, बट क्या होता है, अगर कॉटन जलता है तो वो डायरेक्टली जल जाता है, बट सिंथेटिक फाइबर्स के साथ ये होता है, कभी नायलॉन की रस्सी वगैरह आपके पास रखी हो, आप उसे जलाएंगे तो क्या होगा कि वो टपकेगा, मतलब वो पिघल के टपकने लगेगा। तो अगर आप मान लो आपने कोई नायलॉन का कपड़ा पहना हुआ है और आप किचन में काम कर रहे हैं, मान लिया उस नायलॉन के कपड़े में आग लग गई, तो क्या होगा, वो नायलॉन का कपड़ा जलेगा नहीं, पहले वो क्या होगा, गर्मी की वजह से पिघल जाएगा, पिघल के कहाँ जाएगा, आपकी बॉडी में चिपक जाएगा, उसके बाद वो जलने लगेगा। तो आपकी बॉडी से चिपक के जल रहा है तो आपको ज़्यादा हार्म होगा। जबकि अगर आपने इस टाइम पे कॉटन क्लोथ्स पहने होते तो कॉटन क्लोथ क्या होता है, डायरेक्टली वो जलता है, ठीक है, आपकी बॉडी से इतना ज़्यादा टच नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी को कम हार्म होगा, जबकि सिंथेटिक फाइबर पहनने से ज़्यादा हार्म होता है। बात समझ आ रही है? तो हम ये नहीं कह सकते कि नेचुरल फाइबर्स पहनने से आपको बर्न नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, बट कम होगा, सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा होता है। ओके, बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है वो हमारी स्किन को। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। These were the advantages and disadvantages of the synthetic fibers. Okay, in the next we will go through the plastics and other types of the how can we can गेट द यूज़ ऑफ दैट प्लास्टिक, एंड उसको हम किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे उसको एक अच्छा वो बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है, आपने सुन रखा है बहुत टाइम से कि प्लास्टिक जो है क्या होता है, अपने आप डिकम्पोज नहीं होता, तो वो हमारे नेचर को ख़राब करे। तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।